قرب کی کیفیت تیرے غلام تیرے صدقے سے نماز کے اندر جو ہے وہ اس قرب کا فیض پائیں گے، سبحان اللہ پائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الساجدہ یسجد فی قدمی الرحمن، ہمیں سجدہ کرنے والا ظاہراً تو زمین پر سجدہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اسی لیے حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کو سب سے زیادہ قرب نماز، اور پھر نماز کے تمام اعمال میں سب سے زیادہ قرب جو رب کا نصیب ہوتا ہے وہ سجدے میں نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنا اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اتنا جھکا دیتا ہے کہ مولا میں نے اتنا جھکا دیا اس کے بعد تو جھکانے کی کوئی مزید گنجائش ہی نہیں رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی قدر بلند و بالا کر دیتا ہے، اسی قدر عفت عزت عظمت بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس والے سے نماز جو ہے اگر اپنے آقا کو خوش کرنا ہے تو خوش کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، سبحان اللہ میری آنکھوں کی سبحان اللہ ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ اب نماز کی اس قدر عادی بن جائیں کہ نماز ہمارا مزاج بن جائے، نماز ہماری طبیعت بن جائے، ٹھیک ہے، نماز ہمارا مزاج، جس طرح ایک چیز ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے اور ایک چیز کی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، اس قدر نماز پڑھیں، اس قدر نماز پڑھیں کہ نماز ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر تم، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ اگر می خواہی را، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اچھے خطاط بن جاؤ، اچھے لکھنے والا بن جاؤ، تو پھر اس کا طریقہ کار ہے می نویس می نویس می نویس می نویس، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، ایک دن ایسا ہے کہ تم بہت اچھے خطاط بن جاؤ، بہت اچھا لکھنے والا بن جاؤ۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو اللہ کا قرب والا بن جائیں، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اس کی محبت نصیب ہو جائے اور ہمیں وہ اپنا محبوب اور خاص بندہ بنا لے، تو پھر نماز پڑھتے جاؤ نماز پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، ایک وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص سے نواز دے گا اور اپنی پاک بارگاہ میں درجہ محبوبیت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر انشاءاللہ کبھی نماز کی اہمیت کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ حدیث پاک اس لیے آج کیونکہ ہم نماز کو ہی سیکھ رہے ہیں تو ہمیں نماز کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ نماز ہے کیا، جس کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو نماز یہ رب کی ملاقات ہے، رب کے ساتھ بندے کی ملاقات ہے۔ یاد رکھیں نماز جب پڑھیں اگر یہ کیفیت ذہن میں پیدا ہو جائے تو پھر نماز کی کیفیت ہی اور ہو جائے۔ اگر ہم یہ پتہ ہو کہ ہم نماز میں کھڑے اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے، حدیث پاک میں یہی ہے کہ نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے، رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب بندہ بات رب سے کر رہا ہو توجہ کہیں اور طرف ہو، یہی چیز بندہ ایک لمحے کے لیے سوچ لے کہ میں تو اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بات آپ سے کر رہا ہوں، توجہ میرا دماغ ذہن کسی اور طرف ہے، تو آپ کو عجیب سا نہیں لگے گا؟ ٹھیک ہے، کہیں گے یہ کیا بات ہے، بات ہم سے کر رہا ہے، مخاطب ہم سے ہے، توجہ اس کی کسی اور طرف، دماغ کسی اور طرف ہے۔ اسی طرح جب بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اسی بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تو اس والے سے مجھے چاہیے کہ میں اپنی پوری توجہ کو اپنے مولا کی طرف رکھوں، میں اپنی پوری توجہ کو اپنے مولا کی طرف رکھوں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے، ٹھیک ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، میں تو رب کی عبادت یوں کر جیسے تو اس کے جلووں کو دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، جیسے تو اپنی آنکھوں سے اس کے جلووں کا۔ اگر یہ کیفیت فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت نصیب نہیں تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر کہ فإنہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں، جب ہمیں پتہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم بالکل صحیح کھڑے ہوں گے، پھر ہم سستی کے ساتھ ایسے نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم صحیح رکوع کریں گے، صحیح سجدہ، تو یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو پھر نماز میں دیکھیں آپ کو کیسی حلاوت اور روحانیت اور نورانیت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس والے سے یہ کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنی نماز کے قبلے کو درست کرنا ہے، نماز کے زاویے کو درست کرنا، اپنی نمازوں کی اصلاح کرنی ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، ٹھیک ہے، اور جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی ہم نے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے۔ تو ہم نے آج حدیث پاک سے کی من لم یصلی فلا دین لہ، حضور فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی دین نہیں۔ کیا مطلب کہ وہ کہے کہ مسلمان ہے، کہ مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھے؟ مسلمان کی تو پہچان یہ ہے کہ جب اسے بلایا جاتا، جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے اور جب آواز لگتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، آؤ اللہ کی بندگی کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس کے فوراً قدم اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف اٹھ چال پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے ہم نماز کے کچھ مسائل سیکھتے ہیں، یہ کچھ سوال آئے ہیں تو یہ ہم ترتیب سے چیزیں پڑھ رہے ہیں
इंशाअल्लाह अजीज़ अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें सबका फ़ायदा हो जाएगा। अगर मैं अपने सबक को छोड़ के इस तरफ आ जाऊँगा तो फिर ये हम बहुत आगे निकल जाएंगे। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। हम तरतीब से नमाज को सीख रहे हैं। अभी हम तकबीर तहरीमा पहुँचे हैं, इंशाल्लाह तरतीब से ये सारी चीज़ें सवाल पूछे गए। क़ज़ा नमाज का तरीक़ाकार पूछा गया है और नमाज फ़जर और नमाज असर की क़ज़ा नमाज भी फ़र्ज़ की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लेनी चाहिए, ये सवाल किया गया है। ठीक है, तो ये चंद सवाल हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। नमाज की अहमियत के हवाले से उसका तफसील के साथ आपके सामने जिक्र हो गया है। तो आइए हम ज़रा सीखते हैं तरतीब के साथ नमाज के मसाइल को। कर चुकी हैं, अब चूँकि वक्त नहीं है तफसीलात दोहराने का, जो पहली क्लासेस में आते रहे उन्हें वो सारी तफसीलात सुनी है कि नमाज की शराइत जो हैं वो पहली शर्त जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, जगह का पाक होना, इसकी सारी तफसीलात और मसाइल गुजर चुके हैं। उसके बाद सत्र औरत, सत्र औरत का मतलब जिस्म का ढांपना। ठीक है, पांचवी शर्त इस्तिकबाल किबला, किबला रूह होकर नमाज पढ़ना, बैतुल्लाह की तरफ, खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। और छठी शर्त थी नियत करना। ठीक है, छठी शर्त क्या थी? नियत करना। इसके नियत करने का तरीकाकार पिछली क्लास में वो तफसील के साथ जो है गुजर चुका है। अब आइए आज से हम सबक स्टार्ट करते हैं नमाज के फराइज का। नमाज के फ़राइज़, पहले फ़राइज़ का माना समझ लें। फ़राइज़ क्या होता है? शराइत के बारे में भी आपने जाना था कि शराइत वो चीज़ें होती हैं जो नमाज के लिए कंपलसरी हो, लाजमी हो, ज़रूरी हो, जिनके बगैर नमाज नहीं होती। फ़राइज़ भी वही चीज़ें हैं जो नमाज के लिए ज़रूरी और लाजमी है और इनके बगैर नमाज बिल्कुल नहीं होती। फ़र्क सिर्फ ये है कि शराइत वो चीज़ें हैं जो नमाज से पहले होती हैं और नमाज से बाहर होती हैं, और फ़राइज़ वो चीज़ें हैं जो नमाज के अंदर शामिल होती हैं। दोनों लाजमी चीज़ें हैं, दोनों के बगैर नमाज बिल्कुल नहीं होती। दोनों का इत्तेमाम करना नमाज के लिए ज़रूरी और लाजमी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम शराइत का लफ्ज़ उन ज़रूरी और लाजमी चीज़ों के लिए बोलते हैं जो नमाज से पहले और नमाज से बाहर, और फ़राइज़ हम नमाज के लिए उन ज़रूरी और लाजमी चीज़ों के लिए बोलते हैं फ़राइज़ का लफ्ज़ जो नमाज के अंदर, जिनका इत्तेमाम नमाज के अंदर किया जाता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तकबीर तहरीमा, तकबीर तहरीमा। दूसरी चीज क़ियाम, तीसरी चीज क़िराअत, चौथी चीज रुकू, पांचवी चीज सजदा, छठी चीज आदा अखीरा, और सातवीं चीज खुरूज बिसुन्ही। अब इन सब की हम डिटेल्स पढ़ेंगे, तफसीलात पढ़ेंगे और इन सब का तरीकाकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का माना समझिए पहले। तकबीर का माना होता है बड़ाई बयान करना, ठीक है, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, उसकी अजमत बयान करना, उसकी किबरियाई को बयान करना। तहरीमा का माना होता है हर्रमा युहर्रिमु तहरीमा, का माना होता है हराम करना। क्या होता है? हराम करना। क्या हराम करना? तकबीर तहरीमा का मतलब ये है जब हम अल्लाहु अकबर, नमाज, तकबीर तहरीमा समझ लें ये नमाज का दरवाजा है। ये क्या है? नमाज का दरवाजा। इसके जरिए हम नमाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस दरवाजे से दाखिल होकर जब हम इस दरवाजे से गुजरते हैं तो हम नमाज के अंदर आ जाते हैं। ये समझ लें नमाज का दरवाजा है। नमाज एक कमरा है, तो उस कमरे में दाखिल होना है तो उसके लिए दरवाजा है। कमरे में दाखिल होना तो दरवाजा होना चाहिए ना, तो दरवाजा जो है वो तकबीर तहरीमा। इस तकबीर तहरीमा के जरिए हम नमाज के अंदर शामिल हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। तो जब हम नमाज के अंदर शामिल होते हैं तकबीर तहरीमा, तहरीमा ये है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे बचना जरूरी होता है और जो चीजें हराम हो जाती है बंदे पर। मिसाल के तौर पर नमाज के अंदर किसी बात होगी कि जब इंसान यूं हाथ उठाता है, एक तो ये हाथ उठाना इशारा है कि मौला ये मैंने सारी दुनिया को परे करके, सारी दुनिया को पीछे छोड़ के मौला तेरी बारगाह में आ गया। ये हाथों का उठाना इशारा है, ठीक है, इस तरफ कि मौला ये मैंने दुनिया को पीछे कर दिया, तेरी बारगाह में आ गया। ये हाथों से इशारा पीछे कर दिया, दुनिया को पीछे कर दिया और तेरी बारगाह में आ गया।
ये हाथों का यूं आना, बोला तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। अब नमाज के अंदर ना तो बंदा खाता है, ना पीता है, ना कलाम कर सकता है, ना बात कर सकता है, ना किसी बात का जवाब दे सकता है। इसलिए कहते हैं नमाज वो इबादत है जिसमें अल्लाह ताला ने सारी इबादतों के रंग रखे हैं, सारी इबादतों के रंग नमाज में रखे हैं। इसमें रोजा भी है, रोजे में यही होता है ना, बंदा खाने पीने से और अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा करने से बंदा रोकता है अपने आप को, तो नमाज में भी आप उन चीजों से रोकते हैं। आप नमाज में खा नहीं सकते, नमाज में पी नहीं सकते, नमाज में दीगर ख्वाहिशात को आप पूरा नहीं कर सकते। तो गोया नमाज में रोजे की कैफियत, नमाज में ज़कात की कैफियत भी नमाज में है। वो कैसे कि नमाज के लिए आपने वुजू किया, वुजू किससे किया? पानी से किया, तो पानी मुफ्त मिल गया। हाँ जी, पानी के लिए खर्च हुआ, जिस जगह आप नमाज पढ़े मुसल्ला वगैरह उसके ऊपर भी खर्च किया गया, ठीक है। तो ये खर्च करने का भी जो है नमाज के अंदर किसी न किसी शक्ल में पाया जाता है, ठीक है। आपके लिए तो बेहतरीन ना, आप जब घर से 14, 15, 20 किलोमीटर का सफर तय करके जब आते हैं तो खर्च करके आए आप, हाँ जी, नमाज के लिए पेट्रोल का खर्च करके आए। तो ये नमाज में ज़कात की कैफियत भी है, नमाज में रोजा भी है, नमाज में ज़कात भी है, नमाज में हज भी है। हज क्या है? हज अल्लाह वालों की यादें हैं। तो आप जब पढ़ती हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह के प्यारों के जिक्र करते हैं तो अल्लाह के प्यारों की याद है। तो हज भी अल्लाह के प्यारों की याद है। आप तवाफ करते हैं, साई करते हैं, सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? कि यहाँ अल्लाह की नेक बंदी हजरत हाजिरा नबी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी थी, उन्हीं की सुन्नत को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए जिंदा और तबिंदा कर दिया और उनकी याद को ताज़ा कर दिया। तो नमाज में भी यही सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो हज की इबादत की कैफियत, बाकी जिक्र, तस्बीह, इस्तिगफार, दुरूद और सलाम सब कुछ नमाज में है। जिक्र भी नमाज में, तस्बीह भी नमाज में, दुरूद और सलाम भी नमाज में, सारी बातों को अल्लाह ताला ने। और फिर मजेदार बात ये भी, ऐसे बात से बात निकल गई, कुल्लुन क़द अलिमा सलाता, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हर चीज की नमाज है, हर चीज की नमाज है, हर चीज की नमाज है, ठीक है। यानी मखलूक, मतलब ये है कि हर मखलूक की नमाज है, हर मखलूक की नमाज है। दरख्तों की भी नमाज है, जानवरों की भी नमाज है, सांप और बिच्छू की भी नमाज है, फजाओं और हवाओं की भी नमाज है, ठीक है। लेकिन किसी को नमाज में फकत क़याम मिला, जैसे दरख्त है, किसी को नमाज में फकत रुकू की कैफियत मिली, जितने चौपाए हैं, ठीक है, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इनको सिर्फ रुकू की कैफियत मिली। कुछ जानवर वो हैं जिन्हें नमाज में फकत सजदे की कैफियत मिली, जैसे सांप और बिच्छू। कुछ जानवर वो हैं कि जिन्हें नमाज में फकत कादे की कैफियत मिली, जैसे मेंढक, उसे सिर्फ कादे की कैफियत मिली। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब के गुलामों को जो नमाज अता फरमाई, उसमें मखलूक की सारी इबादत की सारी शक्लों को जमा कर, सुभान अल्लाह, इबादत की सारी शक्लों को जमा कर दिया। ऐसी नमाज अता फरमाई जिसमें क़याम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है, कादा भी है, जिक्र भी है, तस्बीह भी है और उसका दुरूद और सलाम भी है, ठीक है। सारी चीजों को जो है उसमें जमा कर दिया गया और उसमें हज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है। ये नमाज ऐसी चीज की, नमाज को कहते हैं जामिउल इबादात। नमाज को क्या कहते हैं? जामिउल इबादात। नमाज की नियत आज हम कर लेते हैं, बस अल्लाह अकबर। तो अगले हफ्ते तक जो है आप बस इसी तरह हाथ बांधे रहें, ठीक है, लंबा सा क़याम करते हैं, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आपको अगले मरहले, ये पहला स्टेप हमारा तकबीर तहरीमा। आज हमने तकबीर तहरीमा का माना समझा, ठीक है, इसका तरीकाकार और फिर आगे क़याम किसे कहते हैं और किरात से मुराद क्या है, ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह हम आइंदा क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो कुछ भी बयान हुआ सुना है, मुझे भी आप सबको इन बातों को हमेशा हमेशा याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर आपको मुखलिसाना अपना मजहबी फरीज़ा समझते हुए मैं फिर दावत दे रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक खासी अच्छी तादाद नज़र आ रही है, तो ये तादाद अगर हर क्लास में होगी तो यकीनन ये सिलसिला, रूहानी सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यकीनन मैं समझ 1 घंटा बस आपने दिया टाइम आज, तो 1 घंटे में आपने खुद ही अंदाजा कर लें, सोच लें कि आपने किस कदर सीखा, ठीक है। तो बस आपने कोशिश करनी है कि खुद भी आप तशरीफ लाएं, खुद भी तशरीफ लाएं हर क्लास में, अथवा हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा दीन के लिए फिक्स कर दें, महसूस कर दें, फिर देखें आप पर किस तरह इसकी बरकत आप पूरा हफ्ता महसूस करते रहो, ठीक है। और चंद हफ्ते ये आप क्लासेस अटेंड करें और फिर इसकी बरकतें आप मरते दम तक सारी जिंदगी महसूस करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी हम ऊपर जाके असर की नमाज बाजमात पढ़ेंगे और उसके बाद मुख्तसर हमारी महफिल पाक होगी। बयान यहाँ काफ़ी सारा हो गया, ऊपर वाला बयान मुख्तसर जो आज 11वीं शीफ, बड़ी 11वीं शीफ
ٹھیک ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اس مبارک بھی اسی ماہ مبارک میں ربیع الثانی میں ہوتا ہے. اسی سلسلے میں آج مختصر ختم شریف کی شکل میں ایک محفل